اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ محترم عازمین حج اور حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہونے والے تمام مومنین کرام، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سلام کے ساتھ ساتھ آپ تمام عازمین حج کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خداوند متعال نے آپ کو یہ توفیق دی، سعادت کی کہ آپ اتنے کروڑوں خربوں مسلمانوں میں سے خوش نصیب ہیں کہ خداوند متعال نے خصوصی طور پر آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس عظیم اور مبارک عبادت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ ابتداءً عرض کر دوں کہ اہم دعاؤں میں جس دعا کی گزارش ہے وہ دعائے فرج امام زمان ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو کہیں پر بھی آپ لوگ فراموش نہ کریں اور ان کے ظہور کی تعجیل میں قدم بقدم دعا فرماتے رہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس غرض کے ساتھ کہ حج بیت اللہ کے کچھ احکام اور مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ مسائل دو طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ یہ کچھ احکام کلی ہوتے ہیں اور کچھ جزئی ہوتے ہیں، یعنی کچھ احکام ڈیٹیل میں بتائے جائیں گے اور کچھ فہرست وار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جہاں تک حج کی بات ہے تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا حج افراد ہوتا ہے، یا حج قران ہوتا ہے، یا حج تمتع ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر یہاں پہ حج تمتع کے احکام عرض کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حج افراد و قران اہالی مکے میں رہنے والے افراد اور مکے کے آس پاس جو افراد رہتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، اس کے احکام حج تمتع سے تھوڑے جدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ضرورت ہے آپ عازمین حج جو سعودی عربیہ سے باہر سے تشریف لا رہے ہیں اور عازمین حج ہیں اور حج جیسی عبادت کو آپ انجام دیں گے، اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج تمتع 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ حج تمتع میں عمرہ تمتع بھی شامل ہوتا ہے اور خود حج تمتع بھی شامل ہے۔ عمرہ تمتع حج تمتع کا جز ہے، پارٹ ہے، حصہ ہے۔ آپ جب سعودی عربیہ تشریف لائیں گے تو یا پہلے مدینہ تشریف لائیں گے یا سیدھے مکہ پہنچیں گے۔ اگر آپ لوگ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو مدینہ منورہ کی زیارتوں کے بعد جب آپ عازمین مکہ ہوں گے اور مکے کے سفر کا ارادہ کریں گے تو وہیں سے آپ کے عمرہ تمتع کے احکام شروع ہو جائیں گے۔ عمرہ تمتع میں 5 چیزیں واجب ہیں اور یہ 5 رکنی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز احرام ہے، دوسری چیز طواف خانہ خدا ہے، اور تیسری چیز نماز طواف ہے، اور چوتھی چیز سعی ہے جو صفا و مروہ کے درمیان آپ کو انجام دینی ہے، اور آخری چیز جو عمرہ تمتع کے احکام میں اور ارکان میں پائی جاتی ہے وہ تقصیر ہے، یعنی سر، داڑھی یا مونچھوں کے چند بال کو کٹوا لینا، یہ تقصیر کہلاتا ہے۔ تو عمرہ تمتع کے یہ 5 ارکان ہیں، اور ان 5 ارکان اور احکام کے جزئی یعنی ڈیٹیل میں سب کے مسائل ہیں۔ مثلا احرام کے مسائل الگ ہیں اور طواف کے مسائل الگ ہیں، نماز طواف کے مسائل الگ ہیں، سعی جو صفا و مروہ کے درمیان ہوگی اس کے ڈیٹیل میں مسائل ہیں، اور اسی طرح سے تقصیر کے مسائل ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اگر آپ لوگ مدینہ سے سفر اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو میقات ہے، یعنی جو آپ کو جہاں سے احرام باندھنا ہے اور نیت کرنی ہے، وہ ذوالحلیفہ، مقام ذوالحلیفہ یعنی مسجد شجرہ جو مدینہ سے کچھ دوری پر ہے، باہر ہے۔ جب آپ مدینہ سے سفر کرتے ہیں مکہ کے لیے تو مدینہ سے جیسے ہی نکلتے ہیں یہ مقام ذوالحلیفہ یعنی مسجد شجرہ ہے، یہاں پر آپ پہنچیں گے۔ یہاں پر
तमाम चीज़ों का इंतज़ामात रहते हैं, गुस्ल वगैरह के इंतज़ामात रहते हैं, अच्छे तरह से हम्माम बने हुए हैं और मस्जिद भी बनी हुई है। आप यहाँ पर पहुँचकर मीक़ात, ये मीक़ात कहलाएगी, यहाँ पर मुहरिम हो जाएंगे, पहले नियत करेंगे, फिर आप इहराम बांधेंगे और इहराम बांधकर 2 रकत नमाज़ इहराम पढ़ेंगे आप वहाँ पर, और फिर अपना सफ़र वहाँ से आप जारी कर सकते हैं। इसमें एक ऑडियो में अलग से इहराम के मसाइल के सिलसिले में आपको भेजूँगा, वो इस चीज़ पर मुश्तमिल होगी कि इहराम बांधने के बाद कितनी चीज़ें मुहरिम पर, यानी जो इहराम बांधता है, हराम हो जाती हैं। लिहाजा अगर आपका इरादा मदीने से जाने का है तो मस्जिद शजरा, और अगर आप सीधे मुस्तकीम तौर पर डायरेक्ट आप मक्का पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है जद्दा से पहुंचेंगे, जद्दा एयरपोर्ट से। जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे तो फिर आप रुख करेंगे, जो आपकी मीक़ात होगी वो होगी जोफ़ा, और जोफ़ा में आप यही तमाम चीज़ें अंजाम देंगे, यानी वहाँ जाकर आप गुस्ल करेंगे, इहराम पहनेंगे, नियत करेंगे और 2 रकत नमाज़ पढ़कर वहाँ से चले जाएंगे। गुस्ल और 2 रकत नमाज वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। फिर आप पहुँचते हैं सरज़मीन खुदा, सरज़मीन बैतुल्लाह यानी मक्का मुकर्रमा में। तो वहाँ सबसे पहले जाकर आपको तवाफ़ कर लेना है। तवाफ़ के ख़ुद जुज़ी और डिटेल में मसाइल होंगे, जिस पर एक ऑडियो में आपको अलग से भेजूँगा। तवाफ़ अंजाम देने के बाद आप नमाज तवाफ़ पढ़ेंगे, जो 2 रकत नमाज होगी, इसकी भी एक मुख्तसर तौज़ी आपको दी जाएगी। इसी तरह से फिर आप नमाज तवाफ़ के फ़ौरन बाद सई कर लेंगे, जो सफ़ा व मरवा के दरमियान, इसके भी थोड़े से जुज़ी मसाइल होंगे जो आपको भेज दिए जाएंगे। और इसी तरह से आपको तक़सीर अंजाम देनी है सफ़ा व मरवा की सई के बाद, यानी अपने सर या दाढ़ी या मूंछ के कुछ बालों को काट देना है, कटवा देना है। ये आपका यहाँ पे उम्रे तमत्तो तमाम हो जाएगा। अब जब आप उम्रे तमत्तो को अंजाम दे लेंगे, तमाम हो जाएगा, फिर आप मक्के से बाहर नहीं जा सकते। कब तक नहीं जा सकते? जब तक आप अरकान हज को अंजाम न दे लें। इसके बाद हज का ज़माना आ जाएगा और फिर आप पर वो अरकान जो हज के सिलसिले में हैं, जो 13 रुकन हैं, वो आपको अंजाम देने हैं जब उसका वक्त आ पहुँचेगा। उसमें सबसे पहले आपको क्या अंजाम देना है? इहराम बांधना है, जो मक्के से ही आपको इहराम बांधना है, यानी आपकी मीक़ात मक्का ही होगी जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं। दूसरा जो रुकन होगा वो होगा 9 ज़िलहिज से वो आपका शुरू होना है नमाज ज़ुहर, यानी जैसे ही ज़वाल आफ़ताब का वक्त होगा उसके फ़ौरन बाद से ये वक़ूफ़ अराफ़ात का वक्त शुरू हो जाएगा और गुरूब तक रहेगा। यानी दूसरा रुकन है, आपको मैदान अराफ़ात में क़याम करना है 9 ज़िलहिज, यानी ईद से एक दिन पहले। किस वक्त से लेकर? ज़वाल आफ़ताब से लेकर गुरूब तक आपको वहाँ पर ठहरना वाजिब है। और ज़िम्नन इसमें जो अहम मसला है वो ये कि नमाज ज़ुहर और असर एक साथ आपको अदा करनी है। इसमें बरादरान अहले सुन्नत भी एक साथ ही नमाज ज़ुहर और असर पढ़ते हैं। ये दूसरा रुकन हो गया। इसके जो ज़िमनी और डिटेल में जो मसाइल होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। जो चीज़ें उम्रे तमत्तो में सेम हैं हज से मुताल्लिक़ वो तो वही रहेंगी, और जो जुदा हैं जैसे वक़ूफ़ यानी ठहरना वगैरह मकामात पर, इसके जुज़ी मसाइल आपको बता दिए जाएंगे। तीसरी चीज़ जो है वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा है। आप गुरूब आफ़ताब के बाद मैदान अराफ़ात को छोड़ देंगे 9 तारीख़ को। अब ये शब लगने वाली है, आप यहाँ से निकलेंगे और मैं कहाँ पहुँचेंगे? मुज़दलिफ़ा यानी मशअर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आपका रात में क़याम होगा, नमाज मग़रिबैन वहीं पे अदा करेंगे। और उसके बाद उसमें जो वाजिब हिस्सा है, जो ठहरना है मकाम मुज़दलिफ़ा पर रात में, आपको रात का कुछ हिस्सा कब तक ठहरना वाजिब है? आपको तुलुए आफ़ताब से कुछ पहले तक मुज़दलिफ़ा में क़याम करना वाजिब है। ये जो मुज़दलिफ़ा है, मकाम मुज़दलिफ़ा, ये अराफ़ात और मक्के के दरमियान हैं, और अराफ़ात ख़ुद जो है वो 4 फ़रसख़
की दूरी पर है मक्का से। चौथी चीज़ रमी जमरा उक़बा है, जो कंकर मारना कहलाता है, यानी बड़े शैतान पर पत्थर आपको मारना है। रोज़े ईद ये जो रमी जमरा अंजाम दी जाएगी, यानी कंकर मारना पत्थर मारना उस शैतान पर, बड़े शैतान पर, ये ख़ुद ईद के दिन अंजाम दी जाएगी और ये मैदान मिना में मौजूद है। फिर आप ईद के दिन क्या करेंगे? ईद के दिन, ईद के अगले दिन और उसके अगले दिन, ये 3 दिन आपको मिना में क़याम करना है। 10, 11 और 12 में क़याम करना है। लेकिन अगर आप 12 की ग़ुरूब तक अगर रुक जाते हैं तो फिर आप पर शब तेरह भी रुकना वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। छठा रुकन जो है वो वाजिब हज का, यानी हज तमत्तो का, वो आपको अपने सर को मुंडवा देना है। और या फिर अगर आप पहले भी हज कर चुके हैं, ये दूसरा या तीसरा हज है आपका, तो आप पे तक़सीर भी काफ़ी है। आप जब सर मुंडवा देंगे और या तक़सीर कर लेंगे, इसके बाद आप पर वो तमाम चीज़ें जो एहराम के बांधने से हराम हो गई थी वो सब हलाल हो जाएंगी, मगर 3 चीज़ें अभी हराम रहेंगी। उनमें से पहली चीज़ है औरत, दूसरी चीज़ खुशबू और तीसरी शिकार। फिर 7वां रुकन जो है वो मक्के आकर आप तवाफ़ हज बैतुल्लाह अंजाम देंगे और तवाफ़ के फ़ौरन बाद आप नमाज तवाफ़ 2 रकत अदा करेंगे और नमाज तवाफ़ के बाद जैसे उम्रे में आपने अंजाम दिया था सई करेंगे सफ़ा व मरवा के दरमियान। और ये सई करने के बाद फिर आपको एक तवाफ़ करना है जिस तवाफ़ का नाम है तवाफ़ निसा। ये वाजिब है और रुकन है हज का। ये अगर आप नहीं करते हैं तो जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए उनकी खातून हराम हो जाएंगी, और जो शादीशुदा अफराद नहीं हैं वो जब तक निकाह नहीं कर सकते जब तक तवाफ़ को अंजाम न दे दिया जाए या इसकी क़ज़ा पूरी ना हो जाए। तवाफ़ निसा के बाद फ़ौरन 2 रकत नमाज आपको अदा करनी है जो नमाज तवाफ़ुन निसा के नाम से है। ये 11 चीज़ें हो गई। 12वीं चीज़ ये है कि आपको मिना में 11 और 12 की रात मिना में ही गुजारनी है, बल्कि बाज़ सूरतों में, यानी वही जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया इससे पहले वाला मसला, कि अगर आप 12 की ग़ुरूब तक रुक जाते हैं तो 13वीं शब भी आप पर रुकना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। और अगर आप 13वीं शब रुक जाते हैं तो बेहतर ये है कि 13 के दिन में भी आप रमी जमरा अंजाम दें, क्योंकि रमी जमरा आपको 13वां जो यहाँ पर रुकन है, यानी शैतान पर पत्थर मारना जो है वो इसी तरह 11 और 12 में भी ज़रूरी है जैसे 10 में ज़रूरी था। लेकिन फ़र्क यह है कि 10 तारीख को आप सिर्फ बड़े शैतान पर पत्थर मारेंगे, 11 और 12 को तीनों शैतानों पर आप पत्थर मारेंगे। ये जो रमी जमरा है इसके ख़ुद ख़ुसूसी मसाइल हैं, वो आपकी खिदमत में अलग से अर्ज़ कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका हज यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ़ एक फ़हरिस्त आपकी खिदमत में अर्ज़ की है और सबके जुदा जुदा मसाइल कोशिश करते हैं